देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, अभी तक हम लोग सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड देखे या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन देखे और द एसिमिलेशन ऑफ द अमोनियम आयन, एसिमिलेशन ऑफ द नाइट्रेट आयन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तक बनाए, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने की प्रोसेस भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पूरा एनाबॉलिज्म पार्ट जो है पढ़ लिया। अब हाउ इट इज द डिग्रेडेड, हाउ इट इज द डिग्रेडेड, ठीक है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द अमीनो एसिड। अब क्योंकि प्रोटीन तो डिग्रेड कर जाएगा, तो प्रोटीन अल्टीमेटली दे आर द मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इज मेड अप ऑफ द वेरियस अमीनो एसिड। तो बेसिक यूनिट दैट इज द अमीनो एसिड, हाउ इट इज द डिग्रेडेड। तो इसके जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अमीनो एसिड होता क्या है। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत से अमीनो एसिड मिलके जुड़ के क्या बनाते हैं? कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इन विच अमीनो एसिड residue joined to it neighbor by specific type of the covalent bond, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, why it is called as the residue term? Because during the joining, during the formation of peptide bond, water is the eliminated. water क्या होता है? water is the eliminated. ठीक है, water is the eliminated. ओके, तो वाटर इज द एलिमिनेटेड। अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करोगे अमीनो एसिड को, दैट इज मेड अप ऑफ दिस टाइप RNH2 and carboxylic acid at the alpha carbon carboxylic group and amino group are the joined at the alpha carbon amino group and carboxylic group are the joined. और this is the R by the alkene group. Okay, this R is known as the side chain. This is the side chain or the R Side group chain. which is the vary from amino acid to amino acid. Amino acid. Okay, it is the hydrocarbon, it may be the alcohol, or it may be it is the change from amino acid to amino acid. Generally every amino acid have this structure the common. R के अलावा जो भी स्ट्रक्चर है दैट आर द कॉमन, उसमें एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ओके, और दैट कार्बन इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन, एक्सेप्ट वन अमीनो एसिड। ओके, दैट इज द प्रोलीन। वो क्या है? दैट इज द प्रोलीन which is the secondary amino acid. It does not the NH2 group. At the place of NH2 group, it have the imino group. It have the imino, IMINO. That is the NH, not NH2. At the place of NH2, it have the imino group. Otherwise, all amino acid are the exist in this framework. Okay. On the basis of the side chain or the R group, various type of the amino acid. If it is the aliphatic side chain, aliphatic means it is the hydrocarbon. It may be the C2H5, C3 वगैरह वगैरह जो हाइड्रोकार्बन के बने हुए हैं, तो that are the like that glycine, alanine, valine, leucine. These are the aliphatic side chain. Another is the side chain containing the OH group. Another is the side chain containing the OH group. That is these two enzyme. Another is the side chain containing the sulfur atom. दो ही अमीनो एसिड है जिनमें क्या होता है? सल्फर होता है. That is the cysteine and methionine. That is the
cysteine and methionine, which having the sulfur. Okay, with side chain containing the acid group. एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही है, साइड चेन में भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर अटैच है तो दैट आर द अनदर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड. बेसिक अमीनो एसिड, इट इज द हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन. क्वेश्चन पूछा जाता है which amino acid having the sulfur atom, which amino acid is the basic, that is the histidine, lysine and arginine. Some amino acid having the side chain is the aromatic, that are the aromatic ring, like the phenylalanine, tyrosine, tryptophan. These are the having the aromatic ring. और एक स्पेशल टाइप अमीनो एसिड है जिसकी अभी आपको हम चर्चा किया, दैट इज द proline. It is the secondary amino acid. It is not primary amino acid. It is the developed from the primary amino acid. ये किससे बना हुआ है? That are the developed from the primary amino acid. In this amino acid, at the alpha carbon, amine nitrogen is the present. क्या होता है? Amino group is the present. That is the NH. Therefore, it is called as the amino acid. Not it is called as the amino. That are also called as the amino acid. Generally जितने भी बॉडी में हमारे अमीनो एसिड होते हैं, मोस्टली नॉट ऑल, दे आर द लियो रोटेटरी. क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं. दैट इज द स्टीरियो आइसोमर. दैट आर द स्टीरियो आइसोमर. कौन सा? लेफ्ट साइड वाले स्टीरियो आइसोमर होते हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कैसा होता है अमीनो एसिड. अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द अमीनो एसिड. डिग्रेडेशन ऑफ द अमीनो एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डीएमिनेशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डीएमिनेशन बिकॉज द अमीनो एसिड आर डिग्रेडेड इनटू द degraded into the ammonium group. They are the degraded into the ammonium ion. They are the degraded into the ammonium ion, due to which, another word it is called as it is the removal of the amino group from the amino acid, due to which amino acid become the alpha keto acid. It is the removal or replacement of amino group from amino acid into ammonium ion, due to which amino acid become the alpha keto acid. This is take place by the two method. It is take place by the two method, or another word it is called, it is the two type. First is the oxidative deamination. Second is the non-oxidative deamination. That is also known as the hydrolytic deamination. That is also known as the hydrolytic deamination. So deamination are the two type: oxidative deamination and non-oxidative deamination. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. Oxidative deamination is the catalyzed by an enzyme that is called as the amino acid oxidase. Amino acid oxidase. In the initial step, it will take place in the two step. It will take place in the two step. In the initial step, two hydrogen atom are removed by the flavin coenzyme or coenzyme 1. It may be the FAD or it may be the FADH2. FAD is converted into the FADH2 or NAD is converted into the NADH2. This reaction, in this reaction, oxygen is the react, and oxygen is converted into the hydrogen peroxide.
it is converted into the hydrogen peroxide, जैसा आप रिएक्शन में देख रहे हैं. तो this is the alpha amino acid. Okay, so here NH2 is converted into the NH, that is the alpha amino acid. देख रहे हैं डबल बॉन्ड हो गया, that is called as the alpha amino. Okay, so this alpha amino acid again hydrolyze, it react with the water molecule in presence of the oxidase enzyme, they are converted into the alpha keto acid. This reaction is take place in our body, especially in the liver and sometime in the kidney, sometime in the kidney also. Okay, और जो इसमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है एक है दैट इज द अमोनियम आयन. क्योंकि अमोनियम आयन क्या है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. देयरफॉर दिस अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया बाय द यूरिया साइकिल. वो अलग साइकिल है, कैसे होता है आर्निथिन साइकिल के द्वारा. दे आर कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द बॉडी बिकॉज अमोनियम आयन इज द टॉक्सिक. और जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज द अल्फा कीटो एसिड. अल्फा कीटो एसिड दे आर द आपकी आवाज सर कट कट क्या रही है. नेटवर्क वीक है ना, इसीलिए आ रहा है, सब समस्या होती है. ठीक है, तो मैं कह रहा था क्या, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो जी सर. ओके, आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर दो, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो. ओके, तो मैं क्या कह रहा था, तो बाई प्रोडक्ट. हाँ सर, मेरी तरफ बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही. अब जा रही होगी आवाज. हेलो. हाँ सर. Okay, so ammonia is converted into the byproduct of this reaction is the ammonia, which is converted into the urea by the another cycle, and main product of this reaction is the alpha keto acid. These alpha keto acid are the enter into the tricarboxylic acid cycle, या हमारा जो Krebs cycle है वहां enter करता है और further breakdown हो जाता है इसका. Okay, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. देखिए कैसे कर रहा है. दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड, इट रिएक्ट विद द एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज in presence of the FADH2. FAD is converted into the FADH2 and it make the alpha amino acid. Alpha amino acid is react with the water, it is changed into ammonium ion and alpha keto acid. At the place of NH2, oxygen is the added. At the place of NH2, oxygen is the added. That become the keto acid. अब क्या हो गया? This is the keto acid. इसमें सेकेंड स्टेप है, टाइप है, दैट इज द नॉन ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन. जनरली जितने नॉर्मल अमीनो एसिड थे जिनके अल्फा कार्बन में सल्फर कंटेनिंग नहीं है इस तरह के, दे आर द टेकिंग प्लेस थ्रू द ऑक्सीडेटिव पाथवे. नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन, it is the process of removal of an amine group from amino acid via the different reaction other than oxidation. पहला क्या होता था? by the oxidation. ऑक्सीडेशन के अलावा अगर अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है, अनदर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, बट नॉट इट इज द ऑक्सीडेशन, देन इट इज कॉल्ड एज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. In another word, it is also called as the direct deamination without oxidation. Deamination without
ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, लाइक दैट एक एंजाइम है सेरीन, सेरीन इज कन्वर्टेड हाइड्रोलाइज इनटू द अमीनो एसिलेट एंड लेटर इट इज चेंज इनटू द पायरुविक एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो दिस रिएक्शन इंक्लूड रिडक्शन, क्रेब्स साइकिल में है होता है सर। हाँ, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। जनरली इट इज टेक प्लेस फॉर द सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन। देखिए स्पेशल टाइप के ही कुछ हैं जिनमें होता है, अदरवाइज मोस्ट कॉमन इज द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इट टेक प्लेस इन द फॉर द अमीनो एसिड लाइक दैट सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीन एंड हिस्टिडीन। अगर एंजाइम की बात करेंगे तो वहां पे एंजाइम होता था ऑक्सीडेज, हियर एंजाइम इज द डिहाइड्रेटेज, लाइएजेज एंड एमाइड हाइड्रोलेजेज, एमाइड हाइड्रोलेजेज। अगर डिफरेंस देखें ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव में, तो यहाँ पे भी एमीन ग्रुप का रिमूवल होता है, वहां पे एमीन ग्रुप का भी रिमूवल होता है। बोथ आर द कॉमन इन द बोथ, बट in oxidative deamination it will take place via the oxidation, while in the non-oxidative deamination it will take place by the different reaction other than oxidation. It will take place without oxidation. It may be the reduction, it may be the hydrolysis, it may be the intramolecular reaction, but never oxidation. Okay. यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द एमीन ग्रुप का, एमीन ग्रुप का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं मोस्टली इट इज द ग्लूटामिक एसिड जो बन, और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इट में बी द सेरीन, इट में बी द थेरियोनिन, इट में बी द सिस्टीन, इट में बी द हिस्टिडीन। एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम जो होते हैं वहां पे क्या है, जनरली इट इज द ऑक्सीडेज, इट इज द ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज, बट हियर एंजाइम इज द dehydratase, liases and ligases. So these are the difference in between oxidative deamination and non-oxidative deamination. अब देखिए ये सब बनने के बाद हमारा अल्टीमेटली कहाँ चले गए, हमें क्या मिल गया इस प्रोसेस के द्वारा, डीएमिनेशन के द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बीटा कीटो एसिड हमें प्राप्त हुआ। और दिस बीटा कीटो एसिड आर इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। अब देखिए जो जो जिससे बना हुआ है, एक बार आपको हमने बनते हुए दिखाया था एसिड से कैसे बनता है, और अब क्या है वही अमीनो एसिड डीएमिनेट करके क्या बना लेंगे, वो पर्टिकुलर कीटो एसिड बना लेंगे जिससे वो बने हुए हैं। ओके, जिसके ट्रांसएमिनेशन द्वारा बने हुए हैं, दे क्या बिकम द कीटो एसिड, और वो कीटो एसिड क्या करेंगे, जो होंगे वहां पे इंटर कर जाएंगे। और सपोज दैट पायरुवेट से अगर डेराइव्ड है तो दीज एंजाइम दे आर इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। एसिटिल कोएंजाइम वाले एसिटिल कोएंजाइम के रूप में इंटर कर लेंगे। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड वाले अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के रूप में इंटर कर जाएंगे। ए वाले एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम के रूप में इंटर कर जाएंगे। ए वाले अमीनो एसिड फ्यूमरेट के रूप में इंटर कर जाएंगे। एस्प्राजीन या एस्प्रेट दे आर द इंटर इनटू द इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलो एसिटेट। इस तरह से पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड डिग्रेड हो गया। यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और अमोनिया अल्टीमेटली दे आर द कन्वर्टेड इनटू द यूरिया और कम आउटसाइड थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज द कॉल्ड एज द अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। ओके।